Hello everyone, myself Mousumi Balapanda, lecturer from IPM School of Engineering and Technology. So in this class, we will discuss some fundamental laws of Kirchhoff's, okay, which is very famous law in our electrical. So Kirchhoff's is having two laws. One is our Kirchhoff's current law, that is KCL, and Kirchhoff's current law, or also it is known as junction law. And second law is our Kirchhoff's voltage law, and also it is known as mesh law. So first thing is, first we have to know what is the statement of Kirchhoff's current law. So it states that, the statement is, it states that in any electrical network, the algebraic sum of all the currents meeting at a point is 0, or mathematically we can write sum of current is equals to 0. So we can consider, we have taken one node point. So first thing, we have to know what is the meaning of a node. So node is a point where two or more circuit elements are connected together. Okay, so this one is our node point. तो node क्या है हमारा, जहाँ पे बहुत सारा conductors connected रहते हैं. So we have taken here 1, 2, 3, 4 and 5 number of conductors. And individual conductors में करंट हमारा क्या क्या आ रहा है, दैट इज I1, I2, I3, I4 and I5. So as it is Kirchhoff's current law, means basically we should deal with current. ठीक है, तो इंडिविजुअल करंट हम ले लिए I1, I2, I3, I4 एंड I5. सो वी शुड नो फर्स्ट व्हाट्स द रूल्स फॉर करंट. सो जो करंट हमारा इनकमिंग आ रहा है, the incoming current means the current which is coming towards the node, that is called incoming current, and that currents which leaves from the node, that is known as outgoing current. So incoming currents यहाँ पे हमारा क्या क्या है, हमारा है I1 एक incoming current है and I4 है एक incoming current. So I1 and I4 is our incoming currents. एंड आउटगोइंग करंट्स क्या क्या है, I2, I3 एंड I5. these आर आउटगोइंग करंट्स. तो हम साइन कैसे लेंगे, जो करंट हमारा इनकमिंग आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, और जो करंट हमारा आउटगोइंग है उसके लिए हम लेंगे नेगेटिव साइन. सो मैथमेटिकली ऑल्सो इसको लिख सकते हैं. सो इनकमिंग करंट है हमारा I1, उसके लिए पॉजिटिव साइन दे दिए. आउटगोइंग करंट है I2, उसके लिए नेगेटिव साइन. I3 भी है आउटगोइंग, नेगेटिव साइन. I4 इनकमिंग है, पॉजिटिव साइन. एंड I5 फॉर नेगेटिव साइन, दैट इक्वल्स टू 0. और जो जो इनकमिंग करंट है I1 प्लस I4, दैट शुड बी इक्वल्स टू I2 plus I3 plus I5, or we can say incoming currents should be equals to outgoing currents. So incoming currents is equals to outgoing currents. Hello. The next starts from second law, which is Kirchhoff's voltage law, or also it is known as Kirchhoff's mesh law or loop law. This is our second law. So it states that the algebraic sum of products of current and resistance in each of the conductor in any closed path in a network plus the algebraic sum of EMF in that path is 0. So mathematically हम इसको कैसे लिख सकते हैं, sum of IR plus sum of EMF, that should be equals to 0. Okay, so anything is how to take the sign convention. तो अगर हमको एक सर्किट दिया जाएगा तो उसके लिए हम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा. सो दिस वन वी आर कंसिडरिंग वन सर्किट. सो सर्किट क्या है, सर्किट शुड बी ए क्लोज पाथ. तो क्लोज पाथ का अभी हम नेमिंग कर देते हैं A, B, C,
डी ए। तो क्लोज पाथ है इसलिए हमारा करंट फ्लो हो सकता है ये सर्किट में। तो ये जो सर्किट लिए हैं हमारा कितना रेजिस्टेंस है, वी आर हैविंग 4 रेजिस्टेंस and 2 battery sources E1 and E2 and resistances R1, R2, R3 and R4। तो हमको ये अप्लाई करने के लिए हमको कुछ रूल्स भी फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट वे टू टेक द करंट डायरेक्शन इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमारा क्या क्या है, रेजिस्टेंस है और बैटरी है। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है, सपोज I1 करंट जा रहा है R1 में, I2 करंट जा रहा है R2 में, देन I3, देन I4। and second step is we have to take the direction of travel। direction of travel means we have to pick a point। suppose हम ये point से start किए जाने का, A से B गए, B से C गए, C से D, again D से A तक पहुँच गए। so this is our direction of travel। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअली रेजिस्टेंस में देखेंगे तो सो दिस वन इज आवर रेजिस्टेंस। सो आवर अजम्पशन डायरेक्शन इज, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स हम जा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल दोनों हमारा सेम हो जाते हैं, देन देयर इज ए वोल्टेज ड्रॉप। एंड वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू IR, एंड वी आर प्रोवाइडिंग ए नेगेटिव साइन, एंड माइनस मतलब दैट इज फॉल इन पोटेंशियल। एंड सेकेंड वन इज हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, क्लॉकवाइज है, लेकिन हमारा अज्यूम करंट जस्ट ओपोजिट ही आ रहा है। अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों ओपोजिट आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, V शुड बी इक्वल्स टू IR। IR मतलब क्या है, राइज इन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर हम बैटरी को देखेंगे तो बैटरी में हमारा 2 टर्मिनल रहता है, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, वन इज नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, मतलब क्या होगा, देयर इज ए फॉल इन पोटेंशियल, मतलब -E। -E मतलब फॉल इन पोटेंशियल। अगेन हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्लॉकवाइज है, तो मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव टर्मिनल में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, +E। +E मतलब राइज इन पोटेंशियल। तो अभी हम सर्किट में देखेंगे ABCD में क्या हो रहा है। हम डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल हमारा क्लॉकवाइज है, मतलब हम A पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, मतलब A पॉइंट से स्टार्ट किए। तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट R1 दे के जा रहे हैं। अगर R1 दे के जा रहे हैं मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा सेम है। अगर दोनों हमारा सेम हो जा रहे हैं मतलब देयर इज ए फॉल इन पोटेंशियल -I1 R1। सिमिलरली दैट इज -I2 R2। ओके, अगेन यहाँ पे एक बैटरी है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब -E2। लेकिन ये जो थर्ड केस है रेजिस्टेंस R3 है, यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, क्लॉकवाइज है, लेकिन हमारा जो अज्यूम करंट है वो कैसे आ रहे हैं, ओपोजिट ही आ रहे हैं। अगर ओपोजिट आ रहे हैं मतलब +I3 R3। नेक्स्ट कहाँ गए, एक बैटरी है, बैटरी में मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब हायर पोटेंशियल में जा रहे हैं, +E1। रेजिस्टेंस में अगेन सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I4 करंट जा रहा है, मतलब -I4 R4, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन जस्ट सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिए, -E1 + I4 R4
इज इक्वल्स टू 0। सो हमारा ये इक्वेशन भी आ गया। और फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं I1R1 प्लस I2R2 माइनस I3R3 इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। So thank you for watching my video.